بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھ سے چھوٹی سی غلطی کیا ہوئی، میری سوتیلی ماں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ میں بھوک کے مارے پورے گھر میں منڈلاتی پھر رہی تھی، لیکن کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ پھر میرے سوتیلے بہن بھائی میرے سامنے کھانا کھاتے رہے، لیکن جھوٹے منہ بھی میری ماں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ میں کس کے سامنے جا کر فریاد کرتی، اس گھر میں میرا اپنا تھا ہی کون۔ ماں جب کھانا نکال رہی تھی تو اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے ڈنڈا مار کر مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ کہنے لگی، جو تو نے غلطی کی ہے اس کی سزا تجھے 3 دن ملے گی، پھر ہی کھانا دوں گی۔ میں روتی ہوئی کچن سے اٹھ کر آ گئی، پھر اوپر چھت پر جا کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ جب بھی دکھی ہوتی یا کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا تو میں چھت پر اکیلی بیٹھ کر روتی تھی۔ آدھی رات تک بری طرح رونے سے درد ہو چکا تھا۔ بھوک کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا، ہر کوئی اپنا پیٹ بھر کر سویا پڑا تھا۔ ایک میں بیچاری لڑکی جو پورے 2 دن سے بھوکی تھی، کسی کو میرا احساس نہ تھا۔ میں دیوار کی منڈیر سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پاس عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈر گئی۔ میں بالکل قریب ایک کالے لباس میں ملبوس خوفناک شکل والا آدمی بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ بھلے ہی وہ شکل سے بدصورت ہو، لیکن وہ بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا، کیا تمہیں کھانا چاہیے؟ میں اس کی بات پر حیران تھی۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں بھوکی ہوں؟ پھر میں نے اس کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بازو میں ایک تھیلا تھا، اس نے مجھے کھانا نکال کر دیا۔ وہ کھانا کھا کر میرا پیٹ بھر گیا۔ اتنا لذیذ اور ذائقے دار کھانا تو میں نے زندگی میں کبھی نہ کھایا تھا۔ میں اس کی شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بھی تم پر کوئی ظلم زیادتی کرے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اب کبھی بھی تمہیں کھانا کھانے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کی بات نے مجھے خوشی دی تھی، کیونکہ یہ بھوک ہی تو تھی جس کی وجہ سے آج میری ایسی حالت تھی۔ جسم میں جان باقی نہ رہی تھی، لیکن اب اس خوفناک آدمی کا دیا ہوا کھانا کھا کر میرے اندر طاقت آ گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم نے مجھے کھانا کیوں کھلایا؟ تمہاری کیا لگتی ہوں میں؟ تو وہ مسکرایا، کہنے لگا، وقت آنے پر میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی نا، اس کا جواب میں تمہیں ضرور دوں گا۔ ابھی تم چھوٹی ہو، اس لیے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری اوپر ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میرے لیے ایک امید چھوڑ گیا تھا۔ میں ہنستی مسکراتی اپنے اسٹور میں آئی اور بستر بچھا کر سو گئی۔ کوئی رات مجھے سہانے خواب آتے رہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوفناک آدمی ایک مہربان شہزادہ ہے۔ میرا نام ملیحہ ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ یوں صرف 4 سال کی عمر میں ہی میرے سر پر انہوں نے سوتیلی ماں لا کر بٹھا دی۔ میں ان کی آنکھوں میں چبھتی تھی۔ وہ مجھے سخت ناپسند کرتی، پھر آہستہ آہستہ نفرت کا اظہار اس صورت میں کرتی کہ ابا کی غیر موجودگی میں میرے ننھے گالوں پر تھپڑ مار دیا کرتی۔ جب تک ابا اور دادی زندہ رہے وہ یہ سب چھپ چھپ کر کرتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ قبر میں جا کر سوئے، اس نے تو کھلے عام اس پر ظلم کر دینا شروع کر دیا۔ میرے بعد میرے 3 بہن بھائی اس دنیا میں آ چکے تھے، لیکن اس کا سارا غصہ مجھ پر ہی نکلتا تھا۔ اس نے دھوکے سے سارا گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ اب میرا اس گھر میں کوئی حصہ نہ تھا۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہیں یتیم خانے میں جا کر رہو، لیکن میں ابھی چھوٹی تھی، مجھے اس بات کا پتہ بھی نہ تھا کہ یتیم خانہ کیا ہوتا ہے۔ 7 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک سکول کا منہ نہ دیکھا تھا۔ پھر میری مجھ سے چھوٹی 5 سال کی بہن سکول جانے لگی تو محلے پڑوس کے لوگوں کے کہنے پر اس نے مجھے بھی سکول داخل کروا دیا، لیکن سکول سے آنے کے بعد 7 سال کی عمر سے ہی میں گھر کا کام کاج کرنے لگی تھی۔ یوں اب میں 12 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ نہ بدلا تھا۔ مجھ سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جاتی تو وہ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دیتی۔
तीन दिन तक स्टोर में बंद करके रखती, खाना भी ना देती। स्कूल की लड़कियां मुझे तरस भरी नज़रों से देखती और आपस में कहती, देखो तो सही इसकी सौतेली माँ कितनी जालिम है, इसके बाल भी बनाकर नहीं भेजती और ना ही इसके पास पेंसिल होती है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रहती थी, ज़्यादा किसी से बात करती और ना ही अपनी कोई दोस्त बनाई थी। हाँ, कभी ज़्यादा दुख होता तो अकेली बैठकर अपने माँ बाप से बातें किया करती थी। जब मैं दुनिया जहाँ से नाराज़ होती तो छत पर चली जाया करती, वहाँ एक कोने में पनाह ले लेती, फिर दीवार से बातें करते करते कब नींद की आगोश में चली जाती थी मुझे पता ही ना चलता। इस बार भी गलती से मेरे हाथ से एक प्लेट टूट गई थी। इस गलती की सज़ा मेरी सौतेली माँ ने मुझे ऐसे दी कि मेरा खाना पीना बंद कर दिया। मैं खाना मांगती रह गई, लेकिन इस जालिम औरत को रहम ना आया। यूँ 2 दिन से भूखी होने की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। इसके सामने जाकर फरियाद करती, मुझे पड़ोस के लोग भी मेरी सौतेली माँ की वजह से इस घर से ना आने देते। फिर आधी रात को मुझे वो खौफनाक आदमी अपनी छत पर नज़र आया था, जिसने मुझे कहा था कि वो ये राज बता देगा जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी कि वो मेरी मदद क्यों करता है। लेकिन उसका दिया हुआ खाना खाकर तो मेरे अंदर ताकत आ गई थी। अब मैं भाग भाग कर काम करने लगी, अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन उसके मुंह के जाविये तो ठीक ही ना होते थे। वो बाज़ार में अपने कपड़ों की दुकान चलाती थी। बाप के मरने के बाद वो पूरी दुकान उसने अपने हाथ में ले ली थी। उसके मातहत 2 मुलाजिम भी काम करते थे। यूँ घर में रुपए पैसे की कोई कमी ना थी, लेकिन मेरे लिए इस घर में कुछ भी ना था। पहनने के लिए वो मुझे अपनी बेटियों की उतरन देती। मेरे कपड़े अक्सर फटे पुराने ही होते थे। न कभी शादी ब्याह में अपने साथ लेकर जाती और ना ही किसी बच्चे की सालगिरह में मुझे जाने देती थी। मेरे 3 सौतेले भाई बहन एतमाद से भरपूर बच्चे थे, लेकिन मैं खुद एतमादी से खाली थी। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं किसी लड़की से बात कर सकूं। जब भी मैं किसी से बात करती तो मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते थे। ऐसे में अगर टीचर क्लास के सामने मुझे डांट देती तो मैं घंटों तक रोती रहती। इसलिए क्लास के टीचर्स भी मुझे डांटने से गुरेज ही करते। फिर जब इन्हें पता चल गया कि मेरे सर पर सौतेली माँ है और सगा बाप मर चुका है, तो वो मुझ पर तरस खाने लगी। किसी के तरस खाने में वैसे भी उलझन का शिकार होती थी, लेकिन अब मैं हंसते मुस्कुराते स्कूल जाया करती थी। जब भी मेरी सौतेली माँ मुझे मारती या डांटती, मैं आधी रात को फ़ौरन छत पर भाग जाती। वहाँ पर वो बैठा होता जो बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया करता था। मेरे आंसू पूछता और मुझे तसल्ली देता कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो ये सारी परेशानियां तुमसे दूर हो जाएंगी। मैं अब चाहती थी कि जल्दी से मैं बड़ी हो जाऊं। यूँ धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, लेकिन इस आदमी का साथ चुपके चुपके मुझे अच्छा लगने लगा। मैं जब भी उदास होती तो उसको याद करने लग जाती। फिर आधी रात के पहर वो मेरे सामने हाजिर हो जाता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मुझे ऐसा लगता जैसे वो हम जैसा इंसान नहीं है, वो कोई और ही था। यूँ अचानक उसका साया सामने आया और फिर गायब हो जाना। मैं कई सालों से इसको देखती रही थी। फिर बिलाखिर वो दिन आ गया जब मैं 18 साल की हो गई थी। फिर इस दिन वो मेरे सामने आया, मुझसे कहने लगा, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं इसकी बात पर हैरान हो गई। उसे कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है, मेरी सौतेली माँ मुझे जान से मार डालेगी। वो कहने लगा कि जब उसने ज़िंदगी भर तुम्हें कोई प्यार ना दिया तो तुम्हें इसकी परवाह क्यों है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। वहाँ पर तुम्हें इज्जत प्यार और बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वैसे भी तुम एक हसीन दोशीज़ा हो। फिर मैंने कहा, ठीक है, कल रात को 12 बजे आना और मुझे अपने साथ लेकर चले जाना। फिर उसके कहने पर मैं अपने आप को आईने में देखने लगी। वाकई उसने ठीक कहा था। मैं जो इन जवान होकर बहुत खूबसूरत हो गई थी, इतनी कि मेरी सौतेली बहनें मेरा मुकाबला ना कर सकती थीं। दूसरे दिन मेरी माँ मुझ पर फिर जुल्म सितम ढाती रही।
स्कूल जाना तो मैंने कब का छोड़ दिया था। अब भी मैं घर के काम काज करके ही इस घर की रोटी खा रही थी, लेकिन अब अपनी बहनों और माँ की नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगी। दिल में सोचा कि जल्द ही उनसे दूर जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। फिर इस रात मैं दबे पाँव छत पर गई जहाँ पर वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैं डर रही थी, लेकिन उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसका भरोसा करके मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर काफ़ी देर बाद जब उसने मुझे आंखें खोलने का कहा तो मैं हैरान रह गई। ये एक वीरान जगह थी जहाँ कुछ भी न था। मैं इस खाली जगह को देखकर रह गई। ये कोई खंडर लग रहा था जहाँ पर जा बिजा ईंटें पड़ी हुई थीं। ऐसे लग रहा था कोई पुरानी इमारत है जो कई सालों पहले बर्बाद हो गई थी। मैं डर कर उससे कहने लगी, ये कौन सी जगह है? तो वो कहने लगा, ये मेरा घर है। मैं यहाँ सालों से रहता हूँ, लेकिन मुझे रहने के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी। ये तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई। मैं उलझन का शिकार थी। फिर उससे कहने लगी, तुम इस खंडर में कैसे रहते हो? तो वो कहने लगा, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। मुझे ये जगह पसंद है क्योंकि मैं खामोशी और सन्नाटे में रहना पसंद करता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं बुरी तरह पीली पड़ गई। उसकी खौफनाक शक्ल बताती थी कि वो इंसान नहीं है, लेकिन वो एक जिन होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं डरकर रोने लगी। उससे कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? भला मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? तो वो खुद एक यतीम लड़की हूँ, आग मुझे बेकार लगते हैं। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम लोगों के लिए बेकार हो लेकिन मेरे लिए बहुत काम करने वाली हो। तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं घबरा कर कहने लगी, कौन सा काम? फिर वो कहने लगा, ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये काम कर लोगी। यहाँ से थोड़ी दूर एक सरसब्ज इलाका है, खूबसूरत है वहाँ की सरसब्ज हरियाली। वहाँ के रहने वाले लोग बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ पर एक लड़की रहती है, इसका नाम नीलो है। वो लड़की नहर किनारे पानी भरने आती थी। पहले मैं इस नहर के करीब एक दरख्त पर रहता था। उसकी नीली आंखें वाली लड़की देखकर उसे दिल चाहने लगा, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि उसका बाप एक आमिल था। कई सालों से मैंने इस दरख्त को अपना ठिकाना बना रखा था। जब भी वो लड़की नहर किनारे पानी भरने आती, मैं उसे देखता रहता, यूं इसका आशिक बन गया। लेकिन वो नहीं जानती थी, वो अकेली ही वहाँ पानी भरने आती और फिर मुस्कुराती गुनगुनाती वापस चली जाती। मेरी निगाहें दूर दूर तक इसका पीछा करती रहती थीं। मैं इसके सामने आने के लिए बेताब था, चाहता था कि किसी तरह वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर ले। फिर एक दिन एक खूबसूरत इंसान का रूप लिया और इसके सामने आ गया। मैंने देखा वो मेरी खूबसूरती से मुतासिर थी, लेकिन मेरी असलियत न जानती थी। मैं इसके नरम लहजे में 2-3 बातें की तो वो भी मेरी असीर हो गई। यूँ रोज़ाना ही वो आकर मुझे ढूंढने लग जाती। उसकी ये अदा मुझे खुशी देती थी। रफ्ता रफ्ता हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। इसका तो पता नहीं था, लेकिन मैं उस पर जान देने लगा। मैं उसका आशिक बन गया। वो भी मुझे इंसान समझकर मुझसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन मुझे ये डर था कि जब इसे ये पता चलेगा कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ, तो कहीं वो मुझे छोड़कर चली ना जाए। फिर एक दिन जब उसने मुझे बताया कि उसका बाप एक आमिल है, वो औरतों और लड़कियों का इलाज मुआवजा करता है जो आसेब ज़दा होती हैं, उनका आसेब दूर करता है। उसकी ये बातें सुनकर तो गोया मैं सांस लेना ही भूल गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैं उसके बाप के सामने चला गया तो वो मुझे ज़रूर पहचान जाएगा। अब वो रोज़ाना मुझे घर जाने पर इसरार करती, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं एक लावारिस इंसान हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। वो मुझे अपने साथ अपने घर रखना चाहती थी, अपने बाबा से मिलवा कर उससे मेरे बारे में बताना चाहती थी। अब वो मुझसे नाराज़ रहने लगी क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मान रहा था।
صرف ایک दिन मैंने उसे अपनी असलियत बता दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कहने लगी कि तुम भले ही एक जिनजादे हो, लेकिन मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसकी इस बात ने मुझे हवाओं में उड़ा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी हकीकत जान लेने के बाद वो मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करती रहेगी। अब मैं भी दीवानों की तरह उससे चाहने लगा था। एक दिन जब मैं उसकी मोहब्बत में उसके घर चला गया, वहाँ पर उसका आमिल बाबा भी मौजूद था। उसने मुझे पहली नज़र में ही पहचान लिया कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। वो लाल आंखों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुम्हें अपना कैदी बना लूँगा। तो मैं कहने लगा, ऐसा सोचना भी, तुम्हारी बेटी मुझे बहुत पसंद करती है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो गज़बनाक हो गया। कहने लगा, ज़रूर तुमने उसे अपनी ताकत से अपनी तरफ माइल किया है, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। उससे पहले कि वो मुझे कैद करता, मैंने उसकी बेटी को आगे कर दिया। यूँ जो उसने मेरे ऊपर अमल किया था, उसकी बेटी पर असर कर गया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की और नीलू को खो दिया। अब वो हमेशा के लिए एक तहखाने में कैद होकर रह गई है, जहाँ पर वो आमिल जिनसादों और जिनसादियों को कैद किया करता था। उसकी अपनी बेटी तहखाने में चली गई। वो ऐसी गहरी नींद की असर हो गई, न जाने उसके कितने सालों बाद आँख खुलनी थी। आमिल बुरी तरह पछता रहा था। वो मेरा दुश्मन बन गया। बड़ी मुश्किल से मैं उससे जान बचाकर वहाँ भागा था। दिन रात अमलियात करता रहा, लेकिन किसी सूरत भी नीलू ने दोबारा आंखें न खोलीं। वो अभी भी उसी तहखाने में सोई रहती है। हत्ता कि इसका आमिल बाबा भी अपनी बेटी को ठीक करने के लिए न जाने कितने अमल कर चुका है, लेकिन उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तुम नहीं जानती मासूम लड़की में उसकी याद में पल पल तड़पता हूँ। अगर किसी भी तरह मेरी नीलो मुझसे मिल गई तो मैं अपनी ज़िंदगी जीने लग जाऊँगा। उस जिनजादे की कहानी तो बहुत दर्द भरी थी। मैं डरते डरते उससे कहने लगी, लेकिन उसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो वो उदासी से मुस्कुराया। कहने लगा, तुम मेरी इस तरह मदद कर सकती हो कि इस आमिर बाबे के पास जाकर उसके घर रहने लग जाओ। वहाँ नीलो इस तहखाने में मौजूद है। तुम्हें नीलो को वहाँ से निकालना होगा। जैसे ही तुम इस घर से उसे बाहर लेकर आओगी, मैं इसे लेने आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी, लेकिन क्या वो आमिल बाबा मुझे अपने घर रख लेगा भला? मैं ये कैसे करूँगी? मैं एक अनजान लड़की हूँ। वो कहने लगा, तुम एक समझदार हो। अपनी अकल से मुझे यकीन है कि तुम इस घर में जगह बना लोगी। मैं बुरी तरह घबरा गई। जिनजादे ने इतने साल तक मेरी मदद की थी, अब मुझे भी इसका सिला देना था। यूँ मैं उसका काम करने के लिए तैयार हो गई। फिर दूसरे दिन उसने मुझे उसी पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया था। वहाँ खुद गायब हो गया। मैं लोगों से पूछती पूछती बलाखिर आमिल बाबा के घर तक पहुँच गई थी। मैंने देखा वो बहुत ज़ईफ़ थे, लेकिन उनके गले में बहुत सी मालाएं थीं। हुलिये से भी ज़ाहिर था कि वो वही आमिल है जिसका मुझे जिनजादे ने बताया था। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। फिर जैसे ही अंदर गई तो आमिल बाबा ने मुझे सर से पाँव तक देखा। कहने लगे, मैं एक लावारिस लड़की हूँ, पनाह की तलाश में इस इलाके में आई थी। क्या आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे सकते हैं? आपकी खिदमत करूँगी। वो बड़े गौर से मुझे देखते रहे। कहने लगे, एक अनजान लड़की को भला मैं कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? मैं पहले ही बड़ी परेशानियों का शिकार हूँ, ऊपर से तुम आ गई हो। इनका गुस्सा देखकर मैं डर गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी की वजह से परेशान हैं। वो मेरी बात सुनकर चौंक गए। कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? इस इलाके का तो कोई भी बंदा ये बात नहीं जानता कि मेरी बेटी की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। मैंने उन सब से कह दिया है कि मेरी बेटी की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में है। मैं दिल में सोचने लगी कि इसका मतलब है कि आमिल बाबा ने अपनी बेटी को तहखाने में छुपा रखा है, वो भी लोगों की नज़रों से ओझल। फिर मैं कहने लगी, मैं खुदा से दुआ करूँगी कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाए, इसलिए मैं आपकी बेटी बनकर इस घर में रहना चाहती हूँ। जब तक आपकी बेटी ठीक नहीं हो जाती, मैं आपकी खिदमत करूँगी।
जैसे ही नीलो आपकी खिदमत करती थी। अब के वो हैरत से उछल पड़े थे। तुम्हें इसका नाम भी मालूम है? सच सच बताओ तुम कौन हो, वरना मैं अभी हिसाब करके पता लगा लूँगा कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। मैं इनकी बात सुनकर घबरा गई। जानती थी कि अगर हिसाब लगा लिया तो मालूम हो जाएगा कि मैं इसी जिनजादे की साथी हूँ। इतनी जल्दी से उनके कदमों में गिर गई। कहने लगी, आमिल बाबा, खुदा के लिए, मैं लावारिस लड़की हूँ, मेरी जान खतरे में है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब आप ही मुझे इस घर में जगह दे दें। बेजारों की तार रोते देखकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कह दिया कि इस घर में रहने में कामयाब हो गई थी। अब मैं हर काम इनकी मदद करने लगी। गहरी नज़र रखने लगी थी कि वो असर कैसा करते हैं जिससे जिन्नात इनके कब्ज़े में आ जाते हैं। अभी तक मैं इस तहखाने को नहीं देख पाई थी कि एक दिन इन्हें कहने लगी, मैं एक नज़र आपकी बेटी को देखना चाहती हूँ। यकीनन वो बहुत खूबसूरत होगी क्योंकि इस इलाके की सारी ही लड़कियाँ बेहद हसीन हैं। मेरी बात सुनकर वो उदास हो गए। कहने लगे, मेरी बेटियाँ तो एक परी की तरह दिखती है, जभी तो इस जिनजादे की वजह से आज वो इस हाल में है। मैं अनजान बनकर कहने लगी, कौन जिनजादा? तो उन्होंने मुझे वही कहानी पूरी सुनाई जो इस जिनजादे ने मुझे सुनाई थी। इनका कहना था कि वो जिनजादा था जिसने मेरी बेटी को अपने इश्क में पागल कर दिया था। न जाने उसने अपनी ताकत से ऐसा क्या अमल किया कि नीलू इसके साथ शादी करने तक तैयार हो गई थी। फिर ये मेरी ही गलती थी। मैं इस जिनजादे से जान छुड़वाना चाहता था, तभी मैंने एक ख़तरनाक अमल किया, लेकिन इस जिनजादे ने चालाकी की और मेरी बेटी को सामने कर दिया, जिसकी वजह से इस अमल का सारा असर मेरी बेटी के ऊपर चला गया। यूँ कई साल बीत गए, अभी तक वो इसी बेहोशी की कैफियत में तहखाने में मौजूद है। फिर आखिरकार वो मुझे अपने साथ तहखाने में लेकर चले गए। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं इस जिनजादे की मोहब्बत नीलो को देखने लगी थी। फिर जैसे ही सामने मौजूद लड़की पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं पत्थर की हो गई। वो तो हड्डियों का ढांचा थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि किसी ज़माने में वो बहुत हसीन होगी। आज कई साल बाद इस बीमारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार लग रही थी। उसकी आंखें बंद होती थीं, वो नहीं कई साल से खोल ना पाई थी। बहुत देर तक उसे यूं ही पड़े देखती रही। मैंने देखा आमिल बाबा रो रहा था, शायद अपनी बेटी के लिए वो कई सालों से देखता रहा था। मैंने इन्हें तसल्ली दी। कहने लगी, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मैं ऊपर आ गई थी। दिल ही दिल में सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं आराम से इन्हें तहखाने से बाहर निकाल लूं। अब आमिल बाबा के घर का सारा काम मैं खुद करती थी। फिर एक दिन मैं इस नहर पर गई जहाँ पर नीलू पानी भरने जाया करती थी। मैंने देखा वहाँ इस आस पार की लड़कियाँ थीं। सारी ही लड़कियाँ बेहद खूबसूरत थीं। फिर एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी, तुम तो हमारे इलाके की नहीं लगती, कहाँ से आई हो तुम? इसकी बात सुनकर मैं गड़बड़ा गई। फिर कहने लगी, बहुत दूर से आई हूँ, आमिल बाबा के रिश्तेदार हूँ। मैंने इस लड़की को झूठ कह दिया था। फिर वो सारी लड़कियाँ कहने लगी, हम दूर एक बाग में फल लेने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मज़ा आएगा। मैं इनकी बात सुनकर घबरा गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है। लेकिन वो लड़कियां कहने लगी, तुम हमारी दोस्त बन जाओ, आओ हमारे साथ, हम तो सब एक साथ रहते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी दोस्तें नहीं बनाई थीं। अब वो लड़कियां का देखकर मैं अच्छा लग रहा था, इसलिए इनके साथ उसी बाग में जा पहुंची। इन्हें जानती थी कि वो लड़कियां इतनी चालाक निकलेंगी। जैसे ही इस बाग में गई तो एक लड़की ने मुझे कहा, वो देखो सामने कुआं है, इसमें जो लड़की भी झांकती है उसे इनाम मिलता है। मैं भी इन लड़कियों की बातों में आ गई। जैसे ही इस कुएं के नज़दीक गई तो पीछे से एक लड़की ने मुझे धक्का दे दिया, इस कुएं में जा गिरी। शुक्र था कि वो ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन मेरे घुटनों में चोट आई थी। मैं वहाँ बैठकर रोने लगी। ऊपर मुझे लड़कियों के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे तो यहाँ से निकलना भी नहीं आता था। मैं बेबसी से रोने लगी थी। अचानक ही
ایک گرجتی ہوئی آواز آئی تھی۔ لڑکیاں بری طرح چیخیں مار کر بھاگ گئی تھیں۔ میں خوف سے کانپنے لگی، کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تبھی میرے سامنے ایک ہیولا سا ابھرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرغولا سا ایک انسان کے روپ میں ڈھل گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں غضبناک تھیں۔ وہ غصے سے کہنے لگا، یہاں کیا لینے آئی ہو لڑکی؟ نہیں جانتی کہ یہ کنواں میری ملکیت ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ کہنے لگی، ان لڑکیوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے جان بوجھ کر یہاں تک گرا دیا، میں خود یہاں نہیں آئی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کرنا ورنہ تمہیں مار ڈالوں گا۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ کہنے لگی، لیکن مجھے نکلنا نہیں آتا، میں کیسے جاؤں؟ تو اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہوا کے دوش پر وہ مجھے اس سے باہر نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی، گھبرا کر اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں، سالوں سے اس کنویں میں رہتا آ رہا ہوں۔ اس علاقے کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کنواں آسیب زدہ ہے۔ پھر میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے میری مدد کر کے مجھے اس کنویں سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ پہلے بھی جنات میری زندگی میں آ چکا تھا۔ وہ تو بہت مہربان تھا، لیکن اس کے چیخنے پر میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے دور چلی گئی، پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ روتی ہوئی نہر پر آئی، وہاں اپنا گھڑا اٹھایا اور عامل بابا کے گھر چلی گئی۔ عامل بابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، تم اتنی دیر سے آئی ہو، آخر کہاں چلی گئی تھی؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگے، ہاں وہ کنواں تو آسیب زدہ ہے، لیکن تم وہاں گئی ہی کیوں؟ یاد رکھنا لڑکی، یہاں کی لڑکیاں بہت چالاک ہیں، وہ تمہیں پریشانی میں ڈال کر خود مذاق بنائیں گی، اس لیے ان سے بچ کر رہنا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، زندگی نے بھلا مجھے کہاں ہوشیاری سکھائی تھی، میں نے تو ہمیشہ لوگوں سے دھوکہ ہی کھایا تھا۔ پھر اس رات میں نیلو کے کمرے میں ہی سو رہی تھی جب مجھے عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ میں نیند سے جاگ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آئی۔ دور ہی دور چلتی اندھیرے میں پتہ ہی نہ چلا کہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں۔ وہ ایک طرف تھا جس کے نیچے سے میں کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی جن زادہ جس نے مجھے یہاں بھیجا تھا وہ مجھے کہنے لگا، تم نے ابھی تک میرا کام نہیں کیا؟ تو میں بے بسی سے بولی، مجھے ایسا موقع ہی نہیں مل پا رہا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں عامل بابا کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، نیلو کا علاج میں خود کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے قبیلے میں ایک خاص جڑی بوٹی ہے جس کا پانی پی کر نیلو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں چند دن تک رکھوں گا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں واپس اسے عامل بابا کے حوالے کر دوں گا۔ دل میں سوچنے لگی کہ یہ جن زادہ اس لڑکی سے کس قدر محبت کرتا ہے جو ابھی تک اس کو بھول نہیں پایا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں جلد ہی تمہارا کام کر دوں گی۔ پھر ایک دن عامل بابا کہنے لگا، میں دور پہاڑیوں پر ایک عمل کرنے جا رہا ہوں، تم نے نیلو کا خیال رکھنا ہے، یاد رکھنا اس گھر کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ پھر جیسے ہی عامل بابا اس گھر سے باہر نکلے، میں فوراً ہی دوڑی دوڑی تہہ خانے میں چلی گئی۔ وہاں پر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی چارپائی پر لیٹی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے بیچاری کی یہ حالت تھی۔ مجھے اس کے اوپر بے تحاشا ترس آیا۔ میں دل سے دعا کرنے لگی کہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ بڑی مشکل سے کھینچ کھینچ کر اسے باہر نکالا تھا۔ کس علاقے والے کی بھی نظر اس پر نہ پڑنی چاہیے تھی۔ اس طرح سے عامل بابا کا جھوٹ کا بھرم ٹوٹ جاتا جو انہوں نے یہاں کے لوگوں سے بول رکھا تھا کہ انہوں نے نیلو کی شادی کر کے اسے سسرال میں رخصت کر دیا ہے۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، میں اسے اٹھا کر اسی درخت کے پاس لے آئی جہاں پر کل میری ملاقات جن زادے سے ہوئی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگا، بولا، تمہارا یہ احسان میں یاد رکھوں گا، لیکن میں تمہاری زندگی بدل کر رہوں گا۔
جیسے ہی ڈیلو ٹھیک ہوگی میں اسے واپس بھیج دوں گا۔ اس کی زندگی تو آسان ہو گئی تھی لیکن میں مشکل میں پڑنے والی تھی۔ جب عامل بابا کو یہ بات پتہ چلتی کہ اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ پھر جیسے ہی وہ گھر واپس آئے فوراً ہی مجھے کہنے لگے میری بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، میں نے ان کا بہت خیال رکھا ہے۔ میں انہیں تہہ خانے کے قریب جانے بھی نہ دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن آخر کار انہیں پتہ چل گیا۔ میں ان کے سامنے کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھنے لگے، پھر بولے اب نیلو کی جگہ تم اس تہہ خانے میں رہو گی۔ مجھے ان کی ہر بات منظور تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے اوپر احسان کیا تھا، مجھے اس گھر میں پناہ دی، لیکن میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پھر میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ کہنے لگی آپ کی بیٹی کا علاج وہ جن زادہ کرے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ اس بات پر غضبناک ہو گئے، کہنے لگے تمہیں کیا معلوم وہ جن زادہ کس قدر شیطان ہے، وہ میری بیٹی کو برباد کر دے گا، اس کی رہی سہی جان بھی نکل جائے گی۔ پھر انہوں نے غصے میں مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس تہہ خانے میں بند ہو کر مجھے اپنی سوتیلی ماں یاد آنے لگی، وہ بھی مجھے اسی طرح اسٹور میں بند کر دیا کرتی تھی۔ پھر میں 3 دن تک بھوکی پڑی رہتی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میری حالت بھی نہ جانے جیسی ہو جائے، جس طرح وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی اسی طرح میں بھی یہاں پڑے پڑے مر جاؤں گی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے روٹی تک نہ ملی تھی۔ عامل بابا مجھ سے سخت ناراض تھے۔ میں نے ان کی اکلوتی بیٹی کو اس جن زادے کے حوالے کر دیا تھا۔ میں کسی بے جان پرندے کی طرح تہہ خانے کے فرش پر پڑی تھی۔ میں سوچنے لگی ایسے ہی حالت میں آج رات میں مر جاؤں گی۔ اچانک ہی آدھی رات کو تہہ خانے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی آیا ہو۔ میں نے وہاں پر کسی کا سایہ محسوس کیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، میرے جسم میں تو جان تک نہیں تھی، بھلا کس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ پھر دیوار سے چپکا وہ مرغولا سا ابھرا اور اس نے انسانی روپ اختیار کر لیا۔ میں مشکل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، حیران رہ گئی کہ وہی کنویں والا آصف تھا جو یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی کہ وہ بلا مجھ سے بدلہ لینے آیا تھا، لیکن میرے اندر تو پہلے ہی ہمت نہ تھی، بھلا اس کا کیا مقابلہ کرتی۔ لیکن آج اس کی نظروں میں مہربانی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ رسدار پھل میرے سامنے رکھ دیے تھے، میں بھوک سے نڈال تھی، ایک ایک کر کے سارے پھل کھا لیے۔ اب میں اپنے اندر طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اس جن زادے کی مہربانی پر مجھے یقین نہ آیا تھا۔ اس دن تو وہ بہت غضبناک ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا تمہیں جب میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے تم بہت اچھی لگی، ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ آج ایسا محسوس ہوا جس سے تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ جب یہاں چلا آیا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ کہنے لگا دراصل جس قبیلے سے میرا تعلق ہے وہاں ایک جن زادہ ہے، اس لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی ہاں وہ بہت مہربان جن زادہ ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ آج وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ آج اس کی محبت اس کے پاس ہے۔ پھر وہ مسکرایا، کہنے لگا ہاں جس طرح میری محبت میرے پاس ہے۔ میں اس کی بات نہ سمجھی تھی۔ ایک دن جن زادہ میرا عاشق ہو سکتا ہے، میں اس پر بہت حیران تھی۔ جس طرح وہ جن زادہ میروں کا عاشق ہو گیا تھا، کہیں یہ میرے پیچھے تو نہیں پڑ گیا؟ میں یہ سوچ کر گھبرا گئی۔ ابھی ظاہر میں تہہ خانے میں قید تھی، لیکن وہ جن زادہ روزانہ میرے پاس آتا، کبھی رسدار پھل لے کر آتا تو کبھی لذیذ کھانا۔ اسے کھا کھا کر میں نہایت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ روزانہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو اپنا آپ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتا تھا۔ آخر 3 دن بعد اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ جب وہ عامل بابا نیچے آیا تھا وہ مجھے زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ ہمیں تو پہلے سے بھی زیادہ ہٹی کٹی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی تو وہ ناراضگی سے مجھے کہنے لگے میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ کہیں تم یہاں پر قید مر تو نہیں گئی ہو، لیکن تم تو پہلے سے زیادہ موٹی ہو گئی ہو۔ پھر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی عامل بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہوگی اور آپ کے پاس آئے گی۔ پھر انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن اب وہ
दिन रात अपनी बेटी का इंतज़ार करने लगे। मैं भी इस जिनज़ादे से पूछना चाहती थी कि आखिर वो कब इनकी बेटी को ठीक करके यहाँ भेजेगा। अब आमिल बाबा मुझे नहर किनारे पानी भरने के लिए भेजते तो मैं खुशी खुशी वहाँ चली जाती। वहाँ से थोड़ी ही दूर वो आसेब ज़दा कुआं था जहाँ पर मेरी मुलाकात इस जिनज़ादे से हुई थी। फिर एक दिन मैं उससे कहने लगी, जिस तरह इन लड़कियों ने मुझे सताया था मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ। तो वो कहने लगा, ठीक है, किसी तरह बहाने से उन्हें यहाँ तक ले आओ, फिर ऐसा उनको डराऊंगा कि वो दोबारा कभी किसी लड़की को डराने की हिम्मत नहीं करेंगी। फिर इस दिन मैं उन लड़कियों का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे हंसने बोलने की आवाज़ें आई थीं। वो मुझे अपने सामने देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगी। बोली, तुम तो ज़िंदा हो, हमने तो तुम्हें जिनके सामने फेंक दिया था। तो मैं इनसे कहने लगी, नहीं, वो जिनज़ादा बहुत मेहरबान है, उसने तो मुझे इनाम भी दिया था। ये देखो सोने की अंगूठी। मैंने वो सोने की अंगूठी इन लड़कियों के सामने कर दी। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई थी। फिर उन्हें कहने लगी, तुम सब भी वहाँ जाओगी तो वो जिन तुम्हें भी इनाम देगा। अब मैं लालच में आ गई, खुशी खुशी फ़ौरन ही कुएं के पास चली गई। जैसे ही कुएं में छुपकर देखने लगी, मैंने फ़ौरन ही उन सब को बारी बारी धक्का देकर गिरा दिया। अब वो बुरी तरह चीखने लगी थी, लेकिन मैंने भी फ़ौरन ही नहर किनारे आकर अपना घड़ा उठाया और वहाँ से फ़रार हो गई। ज़िंदगी में पहली बार किसी से अपना बदला लिया था, वरना तो हर बार दूसरों ने ही मेरे साथ बुरा किया था। अब मैं पहले जैसी ना रही थी, बहुत बदल चुकी थी। रोज़ाना नहर किनारे पानी भरने के बहाने इस जिनज़ादे से भी मुलाकात करने लगी थी। वो रोज़ाना मुझे तोहफे देता था, कभी सोने की अंगूठी तो कभी सोने के कड़े। घरस के उसने ज़ेवरात से मुझे लाद दिया था। अब मैं किसी शहज़ादी की तरह नज़र आती थी। कभी कभी दिल में सोचती कि मैं नीलो की तरह ज़िंदगी गुजारने लगी हूँ। पहले वो जिनज़ादे की मोहब्बत में गिरफ़्तार थी और अब मैं। लेकिन आमिल बाबा दिन रात अपनी बेटी का इंतज़ार करता। फिर एक रात दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं हैरान सी उसे देखने लगी। कौन हो तुम? वो बोली, मैं नीलो हूँ, ये मेरा ही घर है। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। जैसे ही आमिल बाबा ने अपनी बेटी को देखा, वो उससे कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो। वो उदासी से बोली, बाबा, मैंने कहा था ना कि वो मेहरबान जिनज़ादा है, मुझे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। देखो, उसने मुझे अपनी सारी ताकत देकर ठीक किया है। फिर आमिल बाबा इसका सदका उतारने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे ठीक हुई हो? तो वो कहने लगी, उसके कबीले में एक बहुत बड़ा आसेब है जो बहुत ही बीमारियों का कामयाब इलाज करता है। वो हमेशा से ही जिन्नात का इलाज करता था, लेकिन जब वो जिनज़ादा मुझे इसके सामने ले गया तो उसने मेरा इलाज करने से इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं किसी आदमजादी का इलाज हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन जिनज़ादे ने उसे कहा कि मैं अपनी सारी ताकत उस तबीब को दे दूँगा, तो वो इस बात पर खुश हो गया। फिर उस जिनज़ादे की सारी ताकत लेकर उसने मेरा इलाज कर दिया। यूँ आज मैं बिल्कुल ठीक तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं उदास हो गई तो वो क्या मेहरबान जिनज़ादा अब कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। अब नीलू बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैंने देखा सारे लोग इससे मिलने आ रहे थे। आमिल बाबा का झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए वो इन सब लोगों से कह रहे थे कि मैं ससुराल से कई सालों बाद मिलने आई हूँ। मैं अभी पानी भरने के बहाने उसी कुएं के आसेब से मिलने जाती थी। एक दिन उससे मुलाकात करके आ रही थी। हैरान रह गई, नीलो मेरे सामने पीछे ही खड़ी थी। फिर वो कहने लगी, क्या तुम भी उसी इश्क में पड़ चुकी हो जिसमें कभी मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब की थी? मैंने नज़रें झुकाकर उसे कहा तो बोली, जिनज़ादे के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। इसके कबीले वाले कभी भी आदमज़ादी को कबूल नहीं करेंगे। मैंने उससे कहा, वो मुझसे इश्क करता है। तो वह कहने लगी, वो मेहरबान जिनज़ादा था, मेरे लिए जान देता था, लेकिन उसके हिस्से में खसारा आया है। अब तुम भी ये खेल ना खेलो। नीलो के कहने पर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। एक दिन दिल में ख्याल आया कि जाकर देखती हूँ कि सुतीली माँ और छोटे बहन भाइयों का क्या हाल है। फिर आमिल बाबा और नीलो से इजाज़त लेकर अपने घर आ गई। मैंने देखा घर की हालत बहुत बुरी थी। सुतीली माँ बिस्तर से लगी थी। वो न जाने कितने साल से
बीमार थी, जबकि छोटा भाई एक दुकान पर काम कर रहा था। भले ही वो मेरे सौतेले थे, लेकिन अब मुझे उनका ख्याल रखना था। फिर मैं इनकी खिदमत करने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। इस जिनज़ादे के दिए हुए सारे कीमती जेवरात बेच कर इस घर पर लगा दिए। घर में राशन भी मौजूद न था। यूँ इन पैसों से राशन ले आई, माँ की दवाइयाँ भी, लेकिन अभी भी इसी स्टोर में सोती थी। वहाँ इस मेहरबान जिनज़ादे की जाते थीं तो इतने सालों से मेरे सामने न आया था। अब घर के हालात बदल चुके थे। मैं वापस आमिल बाबा के घर न जाना चाहती थी। इसकी बेटी वापस आ गई थी। मेरे लिए यही बहुत था। एक दिन अम्मा कहने लगी, पहाड़ियों पर एक दरवेश रहता है। सुना है कि कई औरतें इसके पास जाती हैं। वो ऐसा दम करता है कि आराम आ जाता है। तुम मुझे भी उसके पास ले जाओ। मैंने कहा, क्यों नहीं, सुबह मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। तो वो कहने लगी, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कभी तुम्हारी माँ ना बन सकी, लेकिन तुमने बेटी बनकर दिखा दिया। मैंने कहने लगी कि पुरानी बातें भूल जाए। जो कुछ होना था हो गया। अब इन्हें याद करके क्या फ़ायदा। मैं भूल गई हूँ, आप भी भूल जाएं। दूसरे दिन अम्मा को साथ लिए मैं इन्हीं पहाड़ियों पर चली गई। पूछते पूछते बड़ी मुश्किल से इस दरवेश के ठिकाने पर पहुंची तो मैं हैरान रह गई। वो तो एक गार में रह रहा था। भला इस सुनसान और वीरान जगह पर वो किस तरह रह सकता था। मैंने देखा सब लोगों की ज़बान पर इसकी तारीफ़ें थीं। फिर जैसे ही अम्मा को लेकर उसके सामने गई तो हैरान रह गई। चादर से अपना मुंह ढांपे तो वो घुटनों में मुंह छुपाकर बैठा था। जैसे ही मैंने उसे पुकारा तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसे देखकर मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। कोई और नहीं बल्कि वही जिनज़ादा था जो इस हालत में क्यों था। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। फिर उसने अम्मा के सर पर हाथ रखकर उन्हें दम किया। वो मुझे पहचान न सका था। इस बात ने मुझे दुखी कर दिया। घर आकर भी मैं गई खोई सी रही। नीलू के गम में वो ऐसा हो गया था, लेकिन वो कितना मेहरबान था। ना सिर्फ नीलू ठीक हो गई थी, बल्कि उसने कई बरसों तक मुझे भी हर परेशानी से बचाया था। अम्मा 3-4 दफ़ा उससे पानी दम करवा कर आई थीं। अब काफ़ी अफाका महसूस कर रही थी। फिर एक दिन आधी रात हुई, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं उससे मिलने उसी पहाड़ी पर चली गई। मैं बुरी तरह घबरा रही थी। सोचने लगी कि न जाने वो मुझे पहचान पाएगा भी या नहीं। फिर जैसे ही उसके सामने जाकर बैठी तो वो जिनज़ादा कहने लगा, मैं तुम्हें पहले दिन ही पहचान गया था, लेकिन अब मेरा यहीं पर दिल लगा रहता है। मैं दरवेश बन गया हूँ। कभी मेरा ठिकाना यहाँ है तो कभी कहीं। मैं किसी एक जगह पर नहीं रह सकता। दुनिया और कबीले के जमीलों से मेरा दिल घबराने लगा था, इसलिए यहाँ अकेला रहने लगा। मैं उसे कहने लगी कि तुम नीलो को नहीं पा सके, तो वो बोला, नहीं, उसने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी लौटकर उसकी ज़िंदगी में ना आऊँगा। मुझे ये वादा निभाना है। फिर मैं कहने लगी, जिनज़ादे तुम दरवेश क्यों बन गए? तो वो कहने लगा, नीलो के इश्क ने मुझे दरवेश बना दिया। अब मैं सारी ज़िंदगी उसके इश्क में काटता चाहता हूँ। मैं इसकी मोहब्बत पर आंसू बहा रही थी। फिर वो कहने लगा, मैं किसी को भी दुख नहीं देखूँगा, तुम इसकी मदद करने ज़रूर जाऊँगा। जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम भी अपने ही जैसे दुखी लोगों की ज़रूर मदद करना, ताकि तुम्हारे दिल को सुकून रहे। आज मैं भी अपने दिल का इत्मीनान अपने साथ लेकर बैठा हूँ। फिर मैं उदासी से उठकर अपने घर आ गई थी। अब मैंने दिलो जान से अम्मा की खिदमत करना शुरू कर दी। छोटे बहन भाइयों का पहले से बढ़कर ख्याल रखती, साथ ही साथ आमिल बाबा और इसकी बेटी के लिए दुआ मांगना भी ना भूलती। नमाज कुरान में दिल लगा लिया। दुनिया की रंगीनियों से दूर मैं अपनी ज़िंदगी में खो गई थी, जहाँ पर मेरे अपने थे। इन अपनों ने भी वक्त ने पर मेरी कदर जान ली थी। इस मेहरबान जिनज़ादे से तो मैंने एक बात सीख ली थी कि ज़िंदगी में कितने ही दुख मिलें, लेकिन अपने गम दूसरों को सुनाने की बजाय इनके गम जानकर इनकी मदद करनी चाहिए। बज़ाहिर वो इश्क का रोग लगा
छुपाकर अपने दिल में छुपाए बैठा था, लेकिन फिर भी दुख इंसानियत की खिदमत करके सवाब कमा रहा था। मैं भी ऐसे ही अपने साथ जुड़े लोगों की मदद करना चाहती थी। आज के बाद मैंने अपने आप से वादा किया था कि कभी भी अपने गम से आंसू नहीं बहाऊंगी। तकलीफ़ों और परेशानियों से अकड़कर ही ज़िंदगी गुजारी जाती है, तब ही मैं अपने आप को एक मजबूत इंसान बना पाती हूँ। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद सनसनीखेज़ और खौफनाक दिल दहला देने वाली रोज़ कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।